Hello everyone. Our today's video is on American Depository Receipt and Global Depository Receipt. American Depository Receipt. What is American Depository Receipt and what is Global Depository Receipt? We will study in this video. Let's see what is American Depository Receipt and what is Global Depository Receipt. See, in India, the shares of public limited company are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. With the adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian company shares are also listed and traded on foreign stock exchanges like New York Stock Exchange, which is called as NYSE, or National Association of Security Dealer Automated Quotation, that is NASDAQ. To list shares on these stock exchanges, company has to comply with policies of those stock exchanges. This policy of this stock exchange are different than the policies of Indian stock exchanges. Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR. Means, in India, there are shares of a public limited company which are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Now there is a free economic policy and there is a globalization. So because of globalization, Indian company want to list their shares and want that their shares of a companies are to be listed in foreign exchange. They can list their shares in any of the stock exchange like NYSE or NASDAQ. To list this stock exchange or to list their shares in this type of stock exchanges, a company has to follow their policies, the policies of that stock exchanges. Therefore, the policy of these stock exchanges are different from the Indian stock exchange policies. So, company has to adopt that companies or that stock exchange policy. In order to avoid their policy, a company cannot list their shares directly on foreign stock exchange. So that company which cannot list their shares directly on foreign stock exchanges, they can get their shares listed indirectly using ADR and GDR. ADR means American Depository Receipt and GDR means Global Depository Receipt. क्लियर ऑल ऑफ यू? मीन्स जो कंपनी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करवा सकती, वो इनडायरेक्टली अपने शेयर्स को, अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है विदाउट यूजिंग दैट स्टॉक एक्सचेंज पॉलिसी. वो उनके पॉलिसी को बिना यूज किए भी अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकती है इनडायरेक्टली यूजिंग एडीआर और जीडीआर. सो जो इंडियन कंपनी है जो अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में और उनके पॉलिसीज को भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो वो उनके पॉलिसीज को बिना यूज किए अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं इनडायरेक्टली यूजिंग एडीआर एंड जीडीआर. सो एडीआर मीन्स वो अपने शेयर्स को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में लिस्ट करवा सकते हैं और जीडीआर मीन्स वो एक्सेप्ट अमेरिका फॉरेन में कोई भी कंट्री में अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं. सो जो इंडियन कंपनी है जो अपने शेयर्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने कंपनी को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं फ्री इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू, और वो दूसरे कंट्रीज के पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो बिना पॉलिसी को यूज किए अपने शेयर्स को किसी भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीआर एंड जीडीआर. नाउ एडीआर और जो जीडीआर है आर डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग इन यूएसए एंड यूरोप.
स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये जो ADR है और जो GDR है ये दोनों डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये लोग डॉलर और यूरो को यूज करते हैं शेयर्स को लिस्ट करवाने के लिए। ट्रेडेड इन USA मींस डॉलर कहाँ पर यूज किया जाएगा, अगर आपने ADR यूज किया है तब, और यूरो कब यूज किया जाएगा, जब आपने अमेरिका को छोड़कर यानी कि ADR को छोड़कर GDR यूज किया है तो आपको यूरो यूज करना होगा। नाउ इंडियन कंपनी इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी। जो इंडियन कंपनी है वो एक एजेंट के थ्रू, एक इंटरमीडियरी के थ्रू, एक मिडिल मैन के थ्रू अपने शेयर्स को लिस्ट करवाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मींस अ बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और ये जो डिपॉजिटरी है वो किसी भी सोर्स के थ्रू हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। तो यहाँ पर जो डिपॉजिटरी है वो कौन यूज किया जा रहा है या फिर कैसे यूज किया जा रहा है या किसके थ्रू यूज किया जा रहा है, ये फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल में दिया है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा। These depository bank issue ADR and GDR to the investor against these shares. Means through depository, means through the middleman like Bank of New York, Citigroup, etc. The depository bank issue ADR means American Depository Receipt and issue GDR means Global Depository Receipt to the investors against these shares. The ADR or the GDR represent fixed number of shares, means there are fixed number of shares. These ADR or GDR are then sold to people in foreign country, means this receipt are sold to the people in foreign countries. The ADR and GDR are traded like regular shares, जैसे कि रेगुलर शेयर्स को बेचे जाते हैं या फिर इशू किए जाते हैं, सेम वे ADR और GDR भी रेगुलर शेयर्स की तरह ही बेचे जाते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और ये भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं। द प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस है शेयर्स के वो फ्लक्चुएट होंगे जैसा कि शेयर्स का डिमांड और सप्लाई होगा, और जैसे कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होगा उसके अकॉर्डिंगली ADR और GDR के अंदर के शेयर्स के प्राइस फिक्स किए जाते हैं। बोथ ADR एंड GDR आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये जो है वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है कि ये कहाँ पर बेचे जाते हैं। इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन USA, अगर वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट USA में ट्रेड किया जा रहा है तो उसको आप बोलोगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अगर ये अमेरिका को छोड़ के वर्ल्ड के किसी भी अदर कंट्री में ट्रेड किया जा रहा है तो उसको आप बोलोगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। NRI, that is non-resident Indians and foreign nationals can invest their money। जो NRIs हैं या फिर जो foreign nationals हैं वो अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में by purchasing ADR और GDR। They can buy ADR और GDR using their regular equity trading account। वो अपने रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ADR और GDR को परचेज कर सकते हैं। द कंपनी पेज डिविडेंड इन होम करेंसी, यानी कि अगर आप फॉरेन नेशनल हो या फिर आप नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो तो आप वो कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हो थ्रू रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट, और कंपनी उनको डिविडेंड उनके होम करेंसी में पे करेगी थ्रू दी डिपॉजिटरी बैंक। The bank or the depository bank convert it into the currency of investors and pay the dividend। यानी कि वो उनके डिविडेंड को उनके होम करेंसी में कन्वर्ट करेगी और फिर उनको डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सचेंजेस ऑन विच GDR इज ट्रेडेड। और GDR कौन कौन से एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड नेस्डैक दुबई, फोर्थ सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, फिफ्थ हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट
और GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ही एंड होगा। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कमर्शियल बैंक क्या है वो पढ़ेंगे। ADR और GDR क्लियर हो गया। ADR मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मीन्स द शेयर्स विच इज ट्रेडेड इन अमेरिका। उसको आप क्या बोलोगे? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और द शेयर्स विच इज ट्रेडेड इन अदर कंट्री एक्सेप्ट अमेरिका इज नोन एज GDR. Rest we will continue in next topic. Thank you. Study this topic well because it is important for your board exam.